Okay, so for today class, we will see how we will define a function in a Power Builder and how we will use, okay, Okay, and sir. how it is different from the predefined function, Yes, sir. user-defined function, Yes, sir. e event list, and method, right now? Right, sir. Because we have similar kind of concept, Okay. Yes, sir. right? Right, sir. So we are going to discuss this function, this function object, because we will be able to see inside the PB object, Yes, sir. right? So this is Right. also a object, PB object, like window, menu, structure, and other rest, right? So today we will create this function, we will call this function, and we will see how it will work. Okay, but Okay. before going to practical, we will see some other concepts as well, which is seems similar like this function object. Okay, so O- let me show you. Let me open one object first, because we have function list attached with each object, right? Right, So, sir. so if you will see, this is the window object, and this window object also have this function list. So these are the predefined functions, right? Yes, sir. Right, sir. So these are the predefined. Predefined means that Power Builder provide, by Power Builder, this list Yes, sir. will provide to their users, right? Right, sir. Okay, and again, we also have number of method, right? Method, we also have method like open, Yes, sir. right? Close. Open, close, retrieve, Yes, sir. right? So Yes, these are the also a function. yes, sir. Okay, so you have to focus on to get the differences. Okay, so just a minute. We can. Where is it? मेरी लाइट इज देर है ना, बहुत ही इसका जो है ना ये लाइट ही ये आ रहा है, राइट? ये Right, sir. इसका थोड़ा सा ये होना चाहिए, इसका थोड़ा सा डार्क है आई थिंक. Sir. Much. Okay, so before going into it, you have to focus to get the differences. Okay, so we will see today Power Builder. So we will see function, right? Right, sir. Function and predefined Fun. functions, है ना? Functions Yes, sir. list, function list which is attached with each object of the Power Builder. One, two, three. Three, we have method, right? Right, sir. Sorry, uh, method. And after we have event. Okay. So in interview, many interviewer ask what is the difference between events and function. Yes, sir. Okay. Okay. So you can go through in internet, okay, and check the differences. So the Yeah. basic differences is like function always required
input parameter. The Right. first difference is input parameter is required for this kind of functions. Okay. In Yes. event, in event, we we can run without parameter as well. Yes, sir. ठीक. Okay. 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 So in Power Builder, we have user that predefined events. Okay. Okay. Predefined events which we will get by default via uh, Power Builder, and we also create user defined events. Okay. User defined events also will be there. लेट्स सपोज कुछ ऐसा लॉजिक है जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जो भी इवेंट्स लिस्ट अवेलेबल है, उस केस में हम फिर अपना यूजर डिफाइंड इवेंट्स बना सकते हैं. Yes, ओके. sir. Okay. एंड मेथड. तो method you can also go through and check. Okay, we have already used many method. Okay, and each function also required a return value, means if function will run, it will return something. Okay, Okay, sir. so return value will also be there in case of a function. Okay. Okay. Yes. So if you will go the internet, just a minute. Uh, let me show these some differences. Okay. Okay. So here, if you will see, or you can also go through, okay. In Power Builder, a function is a reusable block of PowerScript code that perform a specific task and can return a value. Okay, so function always return a value. Yes, sir. ठीक. Okay, Okay. and Okay. defining function, why we are going to define a function? Okay, and the last one you can also uh, remember this is store procedure. Okay, store Yes, sir. procedure. Okay, so these are the very important topic in term of any kind of Power Builder interview. Yes, sir. ठीक. Okay, Okay. you Okay. should have a basic differences in your mind when you are explaining what is a store procedure, what is event, what is method, what is function. Yes, sir. Okay, so very these are the all working similar almost, but they also have a some slight minor differences. Okay, so that you have to go through and remember. Yes, sir. Okay, Okay. so if you will go in a differences, okay, so inside the store procedure we can call another store procedure. Okay, so you Okay. will get a lot of means you can also call the functions inside the store procedure. Okay, but it will be not possible in when we are talking about the functions. Yes, sir. Okay, so these are Okay. the basic difference. Okay, so here if you will see Power Builder support several type of functions. Yes. Okay, so Okay. like a built-in functions, there are predefined functions provided by the Power scripts. Language or common tasks such as again string manipulation, len, upper, right? So these are the built-in function, Okay. right? We had a list of functions, okay, as shown, right? In each object attached with the number of function list, okay? Okay. And user-defined function, so these are custom functions created a developer to meet a specific application requirement.
user defined function we can call it. Okay, Yes. so today we are going to create a user defined function. Okay. Okay, so I will show you that how you will create user defined functions. Okay, Okay. as and the function is a user of sorry, Power Builder object. Okay. Okay. Hmm. So here, if you will see that store procedure functions, these are functions. These are functions defined within database that can be called from Power Builder scripts as remote procedure call. So this process we call RPC. Yes, sir. ठीक. Okay, और so if someone asks in the interview what is RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल, क्योंकि क्योंकि ठीक. क्या होता है, जो स्टोर प्रोसीजर होता है वो एक्चुअली में डिफाइन होता है डेटाबेस के अंदर, यस सर. ठीक. और हम उसको जो ना रिमोटली कॉल करते हैं इनसाइड द पावर बिल्डर. राइट सर. राइट. दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट आरपीसी. यस सर. ओके, ओके सर. गॉट इट ना. सो दिस इज द सम बेसिक definitions which is showing by Google, but you can also go through in official website. Okay, so let me open पावर बिल्डर. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं इसका कि हाउ वी विल क्रिएट. जस्ट a minute. So I have already written a code. I just wanted to show you that how it will be work. Okay, ओके. so फंक्शन. function. Okay, लेट. so here if you will see, this is the function I have created. Okay, so what this function will do, as you know, we have already created one table inside the database employee 2026, right? So हम उसी टेबल को यूज करने वाले हैं फॉर रिट्रीविंग सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड. ओके, क्योंकि फंक्शन का जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट यूज ये है कि वी आर डिफाइनिंग फंक्शन टू रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑफ और लॉजिक, राइट. हम लोग जो ना फंक्शन इसकी वजह से क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम एक जो लॉजिक है, अगर हम उसे कहीं पर बार बार यूज कर रहे हैं, राइट, तो सेम लॉजिक का जो कोड है हमें बार बार लिखना ना पड़े. राइट, राइट ना. हाँ, फॉर कोड रीयूजेबिलिटी वी आर वी आर डिफाइनिंग फंक्शन. ओके, inside the power builder. Okay, so let me show you the example how we will use what is the use case of. Okay, so just a minute. So select strip from employee 2026. Okay, so this is the table. As you know, this table have 100 record. Okay, so this time what I'm doing, I'm retrieving some record. Okay, and what logic I have written inside the function. Okay, so I am passing this department. Okay, I am passing department. Okay, and inside I have written this query. Okay, so what it will be do, it will be total all salary of the department and give me. Okay, so same query I am
रनिंग इनसाइड दी, सॉरी, इनसाइड द डेटाबेस। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ इधर? मैं जो है ना, मतलब मैं जो है ना पास करूंगा यहाँ पर डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका टोटल करके ये मुझे सैलरी दे रहा है। ओके। Yes. हम्म। Yes. Okay. तो यहाँ पर इसको मैं हटा दूंगा, ये इसको मैं हटा दूंगा इधर, और यहाँ पर एक कॉलम लिखूंगा, डिपार्टमेंट। और इसको भी मैं हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पर एक और पीछे में रुकाई, डिपार्टमेंट सी। सो अगर मैं इसको भी अभी वेयर कंडीशन हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस तरीके का रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर लिख देते हैं एज टोटल सैलरी। ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है कि Okay. जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय कर रहे हैं उनकी टोटल सैलरी, ठीक है, मुझे इतनी Number to change now. पे करनी पड़ रही है कुल मिलाकर के, इस तरीके की यदि कोई रिक्वायरमेंट है और तुम्हें पावर बिल्डर पे इसको देखना है, ठीक है, तो तुम्हें जो है ना क्या करना Yes, पड़ेगा, sir. एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जहां पर ये जो कोड है, लेट सपोज कि बहुत जगह यूज हो रहा है जहां पर आप जो है ना सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो लेट सपोज मैं इसको जो है ना रन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पावर बिल्डर के एप्लीकेशन को रन किया, और यहाँ पर एक मैंने ड्रॉप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, और इस फंक्शन को मैं वहीं पर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे फिनेंस, एचआर एचआर की सैलरी अगर यहाँ से तुम मिलाना चाहोगे तो एचआर की यार है 13,62,500, ठीक है, 13,62,500, ठीक है। फिर यहाँ से सेल की सैलरी आती है 13,87,50, ये देखो 13,87,50। अब ये फंक्शन को हम देखते हैं कि किस तरीके से मतलब डिफाइन करना है, राइट। तो रिक्वायरमेंट पता चल गई ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रन टाइम में डिपार्टमेंट पास कर रहा हूं, राइट। ये रन टाइम में वेयर कंडीशन मेरी जा रही है, ठीक है, और वो हमने लिया है एज अ पैरामीटर। तो यहां पर देखोगे फंक्शन को जब भी हम डिफाइन करते हैं हमेशा पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैं डिपार्टमेंट पास कर रहा हूं एज अ पैरामीटर। ओके। Yes, sir. यहाँ पर देखो अब Okay. कैसे कैसे उसको क्रिएट करना है, तो यहाँ पर फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर फंक्शन का नाम देंगे, कुछ भी Yes, नाम sir. दे दो, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डब्लू ऐप कर सकते हैं, ठीक है, जो एक नेमिंग जो स्टैंडर्ड है हमको मेंटेन करना है। एक मिनट, जैसे कि मैंने इसका दिया ना WF डेल, Yes, sir. डेल सैलरी मतलब डिपार्टमेंट सैलरी। तो जब भी हमें क्रिएट करना हुआ तो हम यहाँ पर जाएंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर मैं ये किया, यहाँ पर डब्लू एफ डिपार्टमेंट, इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें जो है ना कितने पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है। तो मेरी क्वेरी में अभी क्या है कि मैं Yes, sir. एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे एक पैरामीटर जो भी है, मतलब वो एल एस डिपार्ट ऐसा करके दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो है ना कोड लिखना है, तो कौन सा कोड लिखना है, Yes, sir. ये वाला कोड लिखना है, जो यहाँ पर ऑलरेडी
इस वाले मेथड को देखोगे ना, तो सेम ये वाला कोड लिख देना है, ठीक है, कि कौन सा कोड तुम बार बार यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने कोड लिख दिया। यस और सर। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर वेयर वेयर कंडीशन पे मैंने इसके पास कर दिया। तो अब जब भी मैं जो ना यस। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से जब भी मैं सेलेक्ट करूंगा, वो जो ना इस क्वेरी को पास हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है, ये रिटर्न वैल्यू लिखनी है। फंक्शन क्या करता है, हमेशा रिटर्न करता है। जब भी प्रोसेस हो जाता है, कंप्लीशन वैल्यू होता है, रिटर्न करता है। वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। तो यहाँ पर हम दो चीजें और इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर एक्सेस आता है, ये हमारा अभी पब्लिक है, मतलब ये जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन है वो पूरे एप्लीकेशन पे रन हो पाएगा। फिर आता है पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट। ओके, सो हम ये इसका यस सर। एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है पास बाय वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू है, रेफरेंस है, रीड ओनली है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इसके, ठीक है, इसके डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक अच्छे पावर बिल्डर के इंटरव्यू के लिए। ओके, सो दीज ओके। डिफरेंसेस ओके यू सर। हैव ऑल्सो गो थ्रू। ओके, learn ओके। where we have to use value, where we have to use reference, where we have to use written, read only, sorry, read only. Okay, so मैं अगर शॉर्ट में ओके। बताना चाहूँ तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सिलेक्टेड है। वैल्यू का सिलेक्टेड है कि मतलब कि आप फंक्शन की यदि पैरामीटर को चेंज करते हैं, तो आपका जो है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू, ये इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू वो चेंज नहीं होती यदि हम ये सेलेक्ट करते हैं। यदि रेफरेंस हम सेलेक्ट करते हैं, तो जब भी हम कोई वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करेंगे, वो हमारे ओरिजिनल वैल्यू को भी चेंज कर देता है। और जब हम रीड ओनली में जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं होता है। फिर हम इसको यस सर। हाँ, नाम देने के बाद में इसको सेव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा अब जो है ना क्या होगा, मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा सेव करोगे यहाँ पर वो नाम आ जाएगा। ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करना है, ठीक है, तो कॉल यहाँ पर देखोगे तो ये हर एक सिलेक्शन, राइट, सिलेक्शन चेंज हो रहा है ना इसका। तो वहां पर मैंने यस सर। हाँ। उस फंक्शन को कॉल किया है। तो अब हम देखने वाले हैं कि फंक्शन को, अगर हमारा फंक्शन लिखा है तो कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ओके। यहाँ पर देखोगे ये जो कॉलिंग हो रही है, ये हो रही है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से सिलेक्शन चेंज इवेंट में। यहाँ पर देखोगे यस सर। सिलेक्शन चेंज इवेंट पे ये यस सर। कोड लिख रहा हूं मैं। मैंने कोड क्या लिखा है, कि जो भी वैल्यू मैं कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरी जो है ना इस वेरिएबल पे सेव हो। ठीक है। और मैं जो पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर ले रहा हूँ, है ना, ये मैंने यस सर। पूरा फंक्शन लिख दिया एज इट इज, और मैंने ये वैल्यू पास कर दी उसमें, क्योंकि इनपुट चाहिए उसको, डिपार्टमेंट का यस सर। नेम चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, ये जो है ना पूरी जो वैल्यू है, वो इस वेरिएबल पे स्टोर कर देगा। और उसी वेरिएबल को आप चाहे जहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बहुत ही सिंपल ये केस रखा हुआ था। देखो यहाँ पर मैं वैल्यू पास करूं जैसे कि फिनेंस, तो ये वैल्यू उसकी उठा करके मैसेज प्रिंट कर रहा है उसकी वैल्यू को। आप इसको चाहें तो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये पब्लिक है, तो पूरे एप्लीकेशन पे आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है। सर। हाँ, तो इस तरीके से हम जो है ना फंक्शन डिफाइन करते हैं पावर बिल्डर में। एंड once you will define, you will be able to use this function entire application. If you uh, created this function as a public, ठीक है, पब्लिक आपने यदि बनाया, तो आप किसी भी जगह अगर इस कोड की जरूरत हो रही है, मतलब तुम्हें कहीं पर भी बार बार सैलरी चेक करना पड़ रहा है डिपार्टमेंट की, या वैल्यूज को यूज करना है, तो आप उसको डायरेक्टली कॉल कर लेना है। कॉल करने का बहुत ही इजी मेथड है। आपको पूरा पूरा जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम लिख देना है। ठीक है, और वहां पर उसके ओके। पैरामीटर पास कर देना है। ठीक है, पैरामीटर पास करोगे, क्वेरी रन होगी, और जो भी फंक्शन का रिटर्न वैल्यू होगा वो आपको स्टोर करके यूज करना है। ठीक है।
सो इस तरीके से ओके हम ओके सर। फंक्शंस को डिफाइन करते हैं पावर बिल्डर के अंदर। अब बताओ यदि कुछ कंफ्यूजन हो। नो सर, एनी नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन ना? नो 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 सर। Okay, then you can try it. You can create and apply some other logic. Okay, and importantly, यस you will go ओके सर। through all concept which I mentioned. Okay, functions, यस built-in सर। function, यस सर। predefined function, method, event, यस। or store procedure. Okay, ठीक ठीक ओके सर। so these have all very minor differences, but they are working similar in a Power Builder. ओके। Okay. ठीक ठीक सर। ओके। Okay, then we will connect in our next class. Okay, with the new topic. ठीक For ठीक today, we are going to stop. ठीक। Okay, bye. Yes.